Okay, we are again here with marine and freshwater microbiology, microorganisms which are present in marine system as well as in terrestrial system. We have studied some structures such as ocean, estuarine region, and now we are talking about river and streams. We talked about ocean, we talked about estuaries, we talked about marsh places, and now we are going rivers and streams. Rivers and streams, there is running water and fresh water. Generally represent the axis of precipitation on land areas, our evaporation from them. Generally what happens, they represent the axis of the precipitation. बारिश जब ज्यादा होती है, there is huge rain, there is more snowfall, more rain. But when the water comes, precipitation, land area evaporation from them. Ocean से evaporation हुई, सिर्फ water content will evaporate, it will go into atmosphere, it will be cooled down over there, it will be condensed, and then it will convert in rain into snow and fall on mountains and will fall on the face of the earth, and then it will go into the streams and the river. Precipitation that falls in either evaporate, transpire, enters the water supply or flows down rivers. So you should be concentrate on this point. This guy is saying precipitation that falls is either evaporated, transpirated, whatsoever water has been evaporated to the atmosphere, जो भी पानी जमीन से evaporate हुआ है, respirate हुआ है, respiration की शक्ल में एटमॉस्फेयर में क्या है, या transpiration हुई उसकी, that converts into rain, that converts into snow, and when rain and snow converts into water, what happens? It gets the groundwater. Some water absorbs in some water absorbs in soil. कुछ पानी जमीन में जज़ब होता है. You believe on it. Water that falls in terms of, in form of rain, in form of snow, where it goes? It absorbs. पहला सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है, बारिश का जो पानी है या बर्फ जब गिरती है उसका पानी फर्स्ट टाइम पे जमीन जज़ब होता है, उससे जो पानी इजाफी मिकदार में होता है, दैट मूव और गोस डाउन इनटू रिवर, उससे जो पानी बच जाता है वो या तो दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या इसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है. पानी ओशियन से एवापोरेट, प्रेसिपिटेशन की शक्ल में, ट्रांसपायरेशन की शक्ल में, उसके बाद रेन या स्नोफॉल में कन्वर्ट होगा, स्नोफॉल के थ्रू जमीन पर आया, पहले वो जमीन पर जज़ब होगा और जमीन के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो उसको चार्ज करेगा, वो उसको फिल कर देगा, चार्ज कर देगा, और रिमेनिंग वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच इज इन एक्सेस, इट विल गो डाउन इनटू अ रिवर. वो फिर दरियाओं में आएगा, दरिया की शक्ल में मूव करेगा, flows downhill and very seasonal. Maybe you will also agree on this point with me. When water flows from mountains to down areas, जब पहाड़ी इलाकों से पानी नीचे की तरफ बहता है, flow is downhill and very seasonal. दरियाओं में जो पानी की मिकदार है वो मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ होती है. जैसे सरमा के मौसम में दरियाओं में पानी
कम होता है, खजा के मौसम में कम होता है, बाहर के मौसम में बढ़ना शुरू हो जाता है और गर्मियों के मौसम में पीक पड़ता है ड्यू टू season, due to melting of snow from glaciers. Related to rainfall and ice snow melt. क्यों होता है? गर्मियों में, बाहर में और गर्मियों के मौसम में बारिश बरसात ज्यादा होती है या whatsoever ice is present in mountain in form of glacier that starts to melt and the quantity of water increases in river. At the same time, some water absorbs into groundwater out. So, beginning of the river, the source and the end of the river, the mouth. So you should listen to think the place from where river starts, the beginning of the river is called the source. And the end of the river, that is mouth. Discharge, how much water is coming in river, maybe in summer when you are listening some news that people are saying that this cubic, 3,000 cubic water is flowing from this place. How they are, this is called discharge. Volume of the water passing at given point during a period of time is called a discharge. So you should think about what is the source, what is the mouth, what is discharge, volume of water passing at given point during a period of time, and how you are calculating this. This is very good formula. Channel width into depth into velocity. This shows flow of water. Flow of water in terms you are getting discharge. Channel width, depth into velocity. It calculates the how much amount of water is going into rivers. So rivers are present on surface of this globe. Rivers are present on surface of this globe, carrying fresh water. Carrying fresh water. That is called sweet water, which is usable, which is potable. But problem is this: when water starts from its origin, such as in form of rain or in form of snow melting, when it comes from mountain, there it is very fresh and have very less contamination or no contamination from where it starts. There is less contamination because less human activity, less pollution or surface runoff has been mixed, and less dissolved substances are there. Why? Because water passed less distance. जहां से समुद्र दरिया का आगाज होता है, जहां से दरिया का आगाज होता है वहां पर पानी बिल्कुल साफ, शफाफ और प्योर होता है। उसका टीडीएस भी कम होता है, उसके अंदर टोटल डिजॉल्व जो सॉल्यूट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वो कम होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है, उसके अंदर केमिकल्स कम होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी जनरेट हुआ है, अभी अभी बना है। आइदर वो स्मेल्टिंग से बना है, आइदर वो बारिश की शक बना है, क्योंकि अभी अभी बना है, उसने फासला कम तय किया है, जिसकी वजह से अंदर मैटर तो इधर से आता है वो भी कम है। एनिमल एक्टिविटीज की वजह से जो चीजें आती हैं वो
talking about this when water has been produced or is produced or generated, when it is going, it is down cities, when it is flowing down, जब वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आता है, दरिया का पानी, रिवर का पानी या चैनल का पानी, it gradually contaminates. जितना वो फासला ज्यादा तय करेगा, इतनी ज्यादा उसके अंदर वक्त के साथ कंटामिनेशन आती जाएगी. रीजन क्या है? इधर उधर की आबादियों से, खेतों से, जमीन की सतह से, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, फ्रॉम लिविंग civilizations or human populations or animal activities through agriculture activities, contaminated water will enter into a river. What will be? Gradually the concentration of pollutants will increase. Concentration of organic material will increase. Concentration of chemicals will increase. If you will see the Darya Sindh, Haber Singh, which is called Haber Singh in Gilgit, here it is called Abasi. And when it is going to flow towards the Punjab and Karachi, it is called as Darya Sindh, Mehran. So if you will see the color of this river and it is beginning, it is transparent. You can see your face. And you can see running fish inside of this water. And here if you will go in Khoshal Garden, the color is gradually dark. If you will go near Sakhar to see the color of this river, it is complete black. तो ये सारे इंसानों के गुनाहों ने उसका रंग काला कर दिया. अब इंसान वहां पर डुबकी लेते हुए भी घबरा जाता है कि मैं कहीं मेरा रंग इसी तरह न हो. There was time when civilization was less, जब इंसानी आबादी कम थी और घरों से निकलने वाला, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला, एग्रीकल्चर से निकलने वाला सारा पानी जमीन के अंदर कहीं जज्ब होता था, दरिया तक नहीं पहुंचता था. That time the color of this water was fresh, transparent, good, was able to drink whatever, but with passage of time it has been contaminated. So fresh water is going to be eliminated from this globe. So people are crying for this one thing. Scientists, they are giving alarm and alarm, maybe there will be a time there will be no water on surface of the earth for drinking purpose. And the majority of water has been converted into salty water. And another thing, they are alarming for the environmental disaster. Global warming is increasing the melting ratio of the glacier with passage of time. जमीन का जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उसकी वजह से ग्लेशियर तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और फ्रेश पानी के जितने जखायर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं. तो इंसान इस चीज से खौफजदा है. दूसरी चीज, आज हमारी जितनी भी आबादी है, सपोज इफ यू आर लिविंग इन कोहाट, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फ्रॉम रिवर फॉर ड्रिंकिंग? देयर इज नो वाटर. द वाटर सोर्स, हर एक ने अपने घर में बोरिंग लगाई है, कुआं लगाया हुआ है. घर बनाने से पहले बोरिंग का सोचता है, कुएं का सोचता है, ट्यूबवेल का सोचता है कि मैंने जमीन के अंदर का इस्तेमाल करना है. क्यों? बाकी देयर इज नो सिस्टम. So 70% population of this globe is from the fresh water. This is rivers and streams. Flow velocity is important in determining abiotic and biotic components. Flow velocity is important in determining abiotic and biotic components. Okay, you should concentrate on this point, please. Flow velocity is important in determining abiotic and biotic components in water. How much speed of water is there, that determines how much organic and inorganic material is there in river. So flow related to slope and precipitation. अगर पानी बहुत ज्यादा स्लोप की जगह से गिर रहा है तो
उसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की अपनी एक पहचान हो। और दूसरा, किस तरह की जमीन से गुजर रहा है, सेडिमेंटेड टाइप एंड करंट स्ट्रेंथ, तो उसकी मौजूदा बन रही है करंट स्ट्रेंथ। Only certain organism can withstand strong flow। अगर पानी बहुत ज्यादा चढ़ाई से गिर रहा है, बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिर रहा है, स्लोप बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, वहां पर ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म कम। क्यों? वहां अटैच होने के लिए, खड़े होने के लिए जगह नहीं, और पानी की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर पानी ऊंचाई से गिर रहा है तो सपोज एक दरिया यूं गिर रहा है, ठीक है, स्लोप स्लोप ज्यादा है इसके अंदर, और दूसरा दरिया यूं गिर रहा है, यूं गिर रहा है, सपोज इसमें क्या ऑर्गेनिज्म स्टैंड हो सकेंगे? क्यों? पानी की स्पीड यहाँ पर ज्यादा हो, पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो नाइदर ऑर्गेनिक मटेरियल कैन स्टैंड आवर हियर, नाइदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन स्टैंड आवर हियर। लेकिन यहाँ पर इट इज स्पीड इज स्लो, because slope is less, so much and more organisms can stand out. Only certain organisms can withstand strong flow। महसूस किस्म के ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह के फ्लो को बर्दाश्त करके वहां पर ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। The faster the flow, the more material can be transported in the water। The faster the flow, the more material can be transported into the water। जिस पानी का फ्लो ज्यादा है, बहाव ज्यादा है, पावर ज्यादा है, वो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल को भी वहां से ले जाकर समंदर तक पहुंचा सकता है। Materials are transported by running water in three principal states। दरिया के थ्रू, रिवर के थ्रू जो मटेरियल समंदर तक पहुंच जाते हैं वो तीन तरह के होंगे। नंबर 1, सॉल्ट। सबसे ज्यादा मिकदार किस चीज की होती है? आर दोज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वाटर इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। जो पानी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में है वो सबसे ज्यादा है। दूसरा क्या हो? सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, प्लास्टिक है एंड वुडन मेटल है, वो उसकी सरफेस के ऊपर होंगे और मूव करेंगे, कहां से? ओरिजिन से जाकर ओशियन की तरफ जाएंगे। और तीसरी चीज है लो, उसके अंदर सस्पेंडेड मटेरियल है, उसके बेड में जो मटेरियल है, नीचे रॉक्स हैं, सैंड है या चिप है, जो भी मटेरियल नीचे, वो भी ग्रेजुअली क्या करेगा? ओरिजिन पॉइंट से मूव करेगा किस तरफ? ओशियन। तो सपोज यहाँ पर जो भी मटेरियल है, मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है या सॉलिड मटेरियल है या डिसॉल्व्ड है या डिसॉल्व्ड है, सब के सब इसमें मूव करेंगे। सब के सब इसमें मूव करेंगे। लेकिन we are saying that movement and flow of organic material will be here faster। Movement will be faster compared to this। Compared to due to its flow और तीन फॉर्म, dissolved form, suspended form and wet form। So therefore we are saying that the estuarial region or material which is transported from here to ocean, it
first time it will go into estuarium region, where more fish, more plants, more marine life will grow. That is our of trees, growing place, most fast growing point. Okay. Used to classify stream or okay, stream order. What is stream order? Stream order used to classify a stream in relation to tributaries, drainage area, total length, and age of water. Stream order used to classify a stream in relation to tributaries, drainage, drainage area, total length, and age of water. उसको हम age of stream order कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं वो किस एरिया से निकलता है, कितने एरिया में फैलता है, टोटल लेंथ उसकी कितनी है उस दरिया की, और उसमें पानी की उम्र कितनी हुई, किस दिन वहां पर मेल्ट हुआ और किस दिन यहां पर पहुंचा. दिस इज कॉल्ड वाटर एज. एज ऑफ वाटर, टोटल लेंथ, ट्रिब्यूटरीज, ड्रेनेज, कहां पर गिरता है, ड्रेनेज कहां पर, ये किस इलाके से होता हुआ गुजरता है, उसको हम स्ट्रीम ऑर्डर कहते हैं. सपोज यहां पर हम देखते हैं हियर यू कैन सी प्रेसिपिटेशन हो गई, मीन बारिश हो गई, बर्फ पड़ी, क्या हुआ, इन माउंटेन के ऊपर बर्फ बैठ गई, ये माउंटेन, इन माउंटेन के ऊपर बर्फ पड़ी, बारिश हुई, ठीक है. अब इस पहाड़ के ऊपर से जो है ये बर्फ मेल्ट होनी शुरू हो गई, यहाँ से ये मेल्ट होनी शुरू हो गई, इस पहाड़ के ऊपर ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट होकर इस दरिया में आ रही, यहाँ पर जो बर्फ मेल्ट हो रही है वो पहले इस दरिया में आ रही है, इस पहाड़ों से जो बर्फ मेल्ट हो रही है वो इस दरिया आ रही है. जो कई मतलब है जिस दरिया में जो फर्स्ट दरिया में आती है उसको हम स्ट्रीम ऑर्डर बोलते हैं. पहाड़ से जहां पर बर्फ, सपोज ये पहाड़ है, यहाँ से बर्फ मेल्ट होकर पहले जिस रिवर में पहुंच गई उसको हम स्ट्रीम ऑर्डर वन. उसके बाद आपको बहता हुआ आगे गया, ये आगे, अब यहाँ पर ये भी स्ट्रीम ऑर्डर वन था, यहाँ पर भी स्ट्रीम ऑर्डर वन था. अब ये नाला और ये नाला आकर आपस में मिले, अब ये जो हो गया ये स्ट्रीम ऑर्डर टू हो. अब यहाँ पर भी पहाड़ों पर बर्फ पड़ी, छोटे छोटे नाले बने, ये स्ट्रीम ऑर्डर वन हो गया, और जैसे ही ये नाले आकर जरा बड़े नाले से मिल गए स्ट्रीम टू हो गया. जब ये बड़े नाले दोबारा टू और टू आपस में मिल गए ये स्ट्रीम ऑर्डर थ्री हो गया. यहाँ एक दूसरा नाला आकर ये स्ट्रीम ऑर्डर फोर, और ये सरफेस में पानी फ्लो कर रहा है. एक के ऊपर फ्लो
बड़ी की शक्ल में पानी आगे बहने लगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना भी मटेरियल, चाहे वो एनवायरमेंटल वेदरिंग की वजह से वहां लूज हुआ था, चाहे वो केमिकल वेदरिंग की वजह से मटेरियल लूज हुआ था, जानवरों के चलने की वजह से, पाँव की वजह से मिट्टी वहां से लूज हो गई थी, या एनिमल मेन्योर जो कुछ भी था वहां पर सबके सब फर्स्ट से सेकंड ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर, यहाँ कंसंट्रेशन कमी, यहाँ दोनों का घन बड़ा आपस में मिल गया, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो इसका भी आकर जमा हो, कंसंट्रेशन बढ़ी जिसकी वजह से ग्रेजुअली रिवर का कलर ब्लैक होता जाता है। उन जगहों में पूरी दुनिया को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो रिस्पॉन्सिबल सोसाइटीज हैं वो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। उनके दरियाओं के पास से या करीब से करंट नजर आता है कि आपका दिल करता है कि आप वहीं को रोक, क्यों वो किसी को किसी चीज को नहीं थे, किसी भी डिस्चार्ज को नहीं आप छोड़ते हैं, तो क्लियर ट्रीट करेंगे, और जब उसको चेक करेंगे कि ना वाटर उसके बाद आप उसको रिवर में छोड़ सकते हैं या ओशन में छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो सरफेस का मटेरियल ये हो, लेकिन कुदरत एट द सेम टाइम, क्योंकि कुदरत इन चीजों को कबल अज वक्त जाने, तो कुछ at the same time, a huge amount of water is going to absorb into the soil, accumulate over here. That is called क्या तो पानी जमीन में जज्ब होता है, जहां जहां पर नरम जमीन है, जहां जहां पर पानी एब्जॉर्ब हो सकता है, और जमीन के अंदर जो लिक्विड पाया है उसको चार्ज करता है। क्योंकि ऊपर का पानी चाहे इंसान यहाँ से इस्तेमाल करे, चाहे यहाँ से पहले इसको इस्तेमाल करेगा, अगर ये काबिल इस्तेमाल हुआ तो लास्ट सोर्स इसके पास ये है कि आखिरी सोर्स। और अब इंसान की हरकतों की वजह से ये वाटर सोर्स भी कंटामिनेट होने लगा है। कहीं पर ड्रिलिंग करते हैं, कहीं पर जो गन पड़ा है उसको वेल बनाकर उसके अंदर दफन कर देते हैं, वो सीप होकर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। एंड दिस इज मोस्ट प्योर वाटर, इसके अंदर माइक्रोबियल और ऑर्गेनिक कंटामिनेशन नहीं है, बिकॉज इट वर्क्स एज अ मोस्ट सुटेबल फिल्टर। जमीन जो है एक बेहतरीन फिल्टर मीडियम के तौर पर काम करती है, उसको जितने भी अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो पास होने नहीं देती, और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं और यहाँ पर अनदर प्रॉब्लम इज देयर, जितने सॉल्युबल एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं, फिजिकल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, सस्पेंडेबल मटेरियल नहीं होते हैं, माइक्रोबियल नहीं होते हैं, लेकिन सॉल्युबल मटेरियल मौजूद। Massive river is classified as a 10th or 12th order stream. Massive river जो स्टेट में उसको क्लासिफाई किया है 10th or 12th stream order. Head stream classified हाँ नहीं असाइनमेंट की शक्ल में लिखें। Stream order, you have to calculate the stream order of this is stream order 1, stream order 2, stream order 3, stream order 4, stream order 5, stream order 6, stream order 7, 8, 9, 10, and 12. Let's see what happens in stream order. Stream order 1 starts 0.5 meters. 0.5 मीटर तक का फासला जो है बहुत कम फासला, यहाँ से सबको पानी इलाका है, यहाँ से वेट होना शुरू हुई फर्क में। किस टाइप के माइक्रोब हो सकते हैं? माइक्रोब्स मौजूद हो सकते हैं, एंड सम फिश
and this type of organism may be present up to stream order 2. अगर यहाँ पर देखते हैं आप स्ट्रीम ऑर्डर 1 में हम देखते हैं तो ये वाली माइक्रोबियल पॉपुलेशन आपको नजर आएगी जो 1 से 2 मीटर तक मौजूद होती है। अगर आप 1 से 2 मीटर एक जगह में पानी बना उसके बाद 2 मीटर उसने सफर तय किया तो वहां पर प्रोबेबल जो माइक्रोबियल कम्युनिटीज हैं वो ये हो सकती है। प्रीडेटर्स, ग्रेजर्स, कलेक्टर्स एंड श्रेडर्स ये वाले ऑर्गेनिज्म फर्स्ट स्ट्रीम ऑर्डर तक सेकंड स्ट्रीम ऑर्डर तक मौजूद है। अब ग्रेजुअली जैसे स्ट्रीम ऑर्डर बढ़ता है आपका यानी माइक्रोबियल पॉपुलेशन इनकी प्रेजेंस बढ़ती है लेकिन कहीं पर आपको रिड्यूस भी होती हुई नजर आएगी। उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होता है वो लाइफ को ऑर्गेनिज्म के लिए विकल्प बनाता है। अब तो 700 मीटर तक अगर आप देखते हैं तो ये वाला कलेक्टर्स और प्रीडेटर्स मौजूद होंगे, ठीक है ना। प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे, प्रोड्यूसर फाइटोन्स ये मौजूद होंगे, ये वाले पॉपुलेशन मौजूद होंगे। वेनोडेटा 1980 ये इन्होंने ये ड्रॉप किया है स्ट्रीम ऑर्डर के अंदर ये उसने थ्रू रिवर चला हुआ और इतने मीटर पर हर स्ट्रीम ऑर्डर से सैंपल कलेक्ट किया और जो भी लाइफ थी उस लाइफ को उसने कैलकुलेट करने की कोशिश की। सो हियर वी आर सेइंग व्हेन stream order increases microbial population also increases and the quantity of water increases, organic material increases, dissolved substances increase. So you have to calculate the stream order of measure of the water. South American में जो Amazonian river है, Amazon river discharge पर 10 मीटर क्यूब पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 10 is the power 3 मीटर क्यूब पानी फ्लो कर रहा है and the length in kilometer 6.44 किलोमीटर है। 10 is the power 3 से ज्यादा है। ड्रेनेज एरिया जितने एरिया पर ये फ्लो हो रहा है 10 is the power 6 किलोमीटर स्क्वायर। कांगो रिवर अफ्रीका and I think this is the most clear Amazon river, कांगो अफ्रीका में है उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में तीसरा चाइनीज में यांगत्से रिवर एंड यूनेस्को यूएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ रशिया में मौजूद है। मैसेंटी नॉर्थ अमेरिकन रिवर ये जिसकी हम बात कर सकते हैं वो ये 76 पॉइंट एशिया में काउ में है ये रिवर चैट। इसकी सूरत हाल ये है दरिया नील जो अफ्रीका में मौजूद है उसकी सूरत हाल ये 6.65 लेंथ इससे ज्यादा है सकती और ड्रेनेज एरिया थोड़ा सा कम है लेकिन क्वांटिटी इसकी कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अमेज़न रिवर आई थिंक दिस वाज द the most oldest civilization should be सबसे अब हमने कैलकुलेट करना है अबसियन रिवर इंडस रिवर की जो है ना आपने ये कैलकुलेट करना गूगल करें किताब करें जो भी करें उसमें से आपने इसका स्ट्रीम ऑर्डर कलेक्ट करना है कैलकुलेट करना है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप अप टू दिस ठीक उसमें आई होगी YouTube आई होगी सब्सक्राइब अगर किया है तो ठीक है नहीं किया नहीं कुछ भी नहीं